Hi guys, good evening. Right now it's about 6:57 p.m. and today is 1st of February 2022. How are you guys, and hope I did watch part of budget session today, but I still need to sit down and comprehend and quite a bit I could understand, but अभी मुझे थोड़ा सा उसको absorb करने में time लगेगा. Hence I'm going to talk about it in a day or two. So what I wanted to show you, this is our Instagram handle. You can also follow us here for finding out some small snippets about stock market. And this is Stock Pro Online with about some 3,700 subscribers as of now. And you can follow us on Telegram, which is the Stock Pro official is our handle. Then you can follow me on Twitter and you can follow me on my YouTube channel, right? So, yesterday I was reading through the comments, right? I was reading through the comments and I really feel good when you people are talking about, like you are, I spent good about 1.5 hours to do my research and give it to you. And I expect you people to at least do communication through the comments, right? Because that's the way, I will know whether you're understanding or not, and it will help YouTube algorithm to, promote our channel. So what I wanted to, here somebody said, Rohit has said, ma'am, please upload a video based on supply and demand zone for intraday Bank Nifty, right? And then he's written, because I cannot purchase your course, so please upload daily videos. So of course I will be uploading daily videos, but I thought it's a good idea to talk about demand and supply zone, right? But I would give it for Nifty, right? Because Nifty is less volatile than the Bank Nifty, and definitely Bank Nifty also will discuss another day. So today we're going to talk about Nifty's supply and the demand zone, right? So what is supply zone? Supply zone is basically where sellers are sitting ready to sell, right? And similarly, demand zone is a support area where people are sitting to buy, right? So how do we identify those support and the resistance zones? So what we can do is we can convert our time frame into 1 day. First we can mark the all whatever we need to mark on one day time frame, and then we can shift our time frame to 1 hour and mark our support and resistance levels. So see here, wherever Nifty takes a turn, right, that becomes a demand or the supply zone. जहां से भी निफ्टी रिटर्न लेती है, राइट, वापस बाउंस रिटर्न होती है, that is a place I would like to call as support zone or the resistance zone. So for example, यहाँ पे ये एक हमारा बहुत important supply zone बन गया, right? तो I will mark it. This is my one of the supply zone. Then the next supply zone is going to be here. यहाँ पे देखो आप, लुक एट दिस कैंडल, इस कैंडल पे निफ्टी नीचे आई और थोड़ा सा ऊपर गई है, राइट? तो ये जगह पे एक सप्लाई क्रिएट हुई है, सो आई एम गोना मार्क दिस एज माय वन सप्लाई जोन. The next supply zone is here, right? You see this tiny candle, Nifty. Let me just draw it for you so that you can all understand what I'm trying to say. Nifty जैसे नीचे जा रही थी, नीचे गई, फिर थोड़ा ऊपर गई, फिर यहाँ टर्न किया, then it's going up और यहाँ इसने रेजिस्टेंस लेके रिटर्न किया, राइट? सो ये हमारा क्या बन गया? it becomes the supply zone, राइट? और यहाँ पे ये दोजी बनी है, इससे ये हमारा डिमांड जोन बन गया, राइट? एंड सेम सप्लाई, देन डिमांड, देन सप्लाई. यहाँ पे सप्लाई बना है, फिर यहाँ पे डिमांड बनी है, एंड देन इट गोज अप लाइक सो एंड सो फोर्थ. तो जहां पे भी आपको रिवर्सल आता हुआ दिखाई दे रहा है, उस जगह को हम लोग मार्क करेंगे, ठीक है? तो उसके बाद एक ये हमारा सप्लाई जोन बना है, यहाँ पे यू हैव अ लुक एट इट. ये जो दोजी बन रही है बीच में, ये जो दोजी बन रही है, तो आई एम गोना मार्क इट हाई एज द सप्लाई जोन. यहाँ से मार्केट नीचे आया, अब इसके बाद ये एक जोन बना है, इस जगह पे भी ये जोन बना है, सप्लाई जोन आप देख सकते हो, ये वाला. सो दिस आई एम गोना मार्क एज अ सप्लाई जोन. उसके बाद नीचे आया निफ्टी, एंड ये हमारा एक डिमांड जोन बना है यहाँ पे. फिर उसके बाद निफ्टी ऊपर गई है और यहाँ से रिवर्सल लिया है इस जगह से, राइट? ये हमारा एक सप्लाई जोन हो गया.
उसके बाद फिर से नीचे आई, फिर ऊपर गई और यहाँ सपोर्ट ले, फिर नीचे रेजिस्टेंस लेके नीचे आई है निफ्टी, एंड दिस इज गोइंग टू बी आवर अनदर सपोर्ट जोन, डिमांड जोन। और यहाँ से ऊपर गया, एक ये जगह पे हमने रिवर्सल आते हुए देखा है, तो दिस बिकम्स आवर सप्लाई जोन। नीचे आया, फिर ऑलमोस्ट इसी जगह से सपोर्ट लेके ऊपर गया है, राइट। निफ्टी जो है यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गई है इस जगह पे, राइट, जस्ट दिस प्लेस, राइट, दिस इज वन ऑफ सेम थिंग। तो यहाँ ये डिमांड जोन है, ऊपर गया एंड उसके बाद कंटिन्यूसली गोइंग अप, यहाँ से थोड़ा इसने रिवर्सल लिया है, राइट। इस दिन ऊपर निफ्टी बंद हुई है, नेक्स्ट डे गैप डाउन ओपनिंग हुई है, तो आई वुड से कि ये हमारा एक जोन बनता है। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग जोन जहां से निफ्टी ने रिवर्सल लिया है। फिर निफ्टी ऊपर गई है और यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आई है और यहाँ से फिर उसने रिवर्सल लिया है। तो अब आप देखोगे यहाँ से हमने मार्क शुरू किया, तो यहाँ पे हमने मार्क नहीं किया था, जो हमारा पास्ट में एक रेजिस्टेंस जोन बना था, जो हमारा सप्लाई जोन बना था, वो अभी भी सप्लाई जोन की तरह इंटैक्ट है। आई होप, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं जो आपको बता रही हूँ कि वो सही है कि नहीं है। एक काम करते हैं, यहाँ से फिर से रिमूव करते हैं सारे ड्राइंग्स को और यहाँ से मार्क करते हैं, बिना पास्ट को देखे हुए हम लोग मार्क करते हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं, इस जगह से शुरू करते हैं, इस जगह से। तो ये एक हमारा सप्लाई जोन है, ठीक है, आई एम मार्किंग इट। सो ये हमारा 1 नंबर हो गया सप्लाई जोन। निफ्टी नीचे 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 आई और यहाँ से रिवर्सल लिया है, तो ये एक हमारा डिमांड जोन हो गया है, राइट। फिर निफ्टी ऊपर गई है और यहाँ से रेजिस्टेंस लिया है, राइट, तो एक ये हमारा सप्लाई जोन हो गया है, इस जगह पे, इस जगह पे मार्क करते हैं, राइट। तो यहाँ से फिर निफ्टी थोड़ा नीचे आई है, नेक्स्ट डे गैप अप ओपनिंग, और फिर आप लोगों को ये आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा पैटर्न बना है, कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, और नेक्स्ट डे लिटिल गैप अप ओपनिंग, उसका मतलब क्या हुआ, और फिर निफ्टी ऊपर चली गई है। नेक्स्ट डे ये हमारा रेजिस्टेंस जोन बनता है, राइट, दिस इज आवर रेजिस्टेंस जोन। यहाँ से दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सप्लाई जोन। सो नीचे आई निफ्टी, थोड़ा ऊपर गई, एक हमारा ये सप्लाई जोन बनता है, राइट, ये सप्लाई जोन बनता है। फिर यहाँ से निफ्टी नीचे आई है, थोड़ा ऊपर गई है और ये हमारा एक सप्लाई जोन बन रहा है, इस जगह पे एक सप्लाई जोन बन रहा है। फिर से बहुत क्लस्टर्ड है बट डजंट मैटर। यहाँ से निफ्टी ऊपर गई, थोड़ा सा नीचे आई और फिर थोड़ा सा ऊपर गई और यहाँ पे एक हमारा डिमांड जोन बन रहा है, सप्लाई जोन बन रहा है, सॉरी। तो अब हम एक चीज देखते हैं कि ये आप नोटिस करो कि दिस प्लेस, ये जो जगह है, राइट, हमने यहाँ पे मार्क किया है, राइट, यहाँ पे हम इसको मार्क कर लेते हैं और we will see what is happening out here. This level which I marked here behaves as a very strong resistance level on the other side. ये एक आपका strong supply zone है, right? उसके बाद नेक्स्ट सप्लाई जोन कहाँ पे आएगा, इस जगह पे कहीं पे आएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, ओपन इक्वल टू हाई। ये कैंडल भी ओपन इक्वल टू हाई है और ये भी कैंडल ओपन इक्वल टू हाई है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। आई रियली वॉन्ट यू टू अप्रिशिएट कि हमने यहाँ मार्क किया था बट ये यहाँ पे भी ऑनर हुआ है, ओके। अब अगर आप थोड़े से लोअर लेवल में चले जाओगे तो भी आपको दिखाई देगा कि ये जोन जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। यहाँ पे इस जगह पे आते ही आप पास में जाके देखोगे, इसको हमने मार्क किया था यहाँ से, राइट। हमने ये सप्लाई जोन क्रिएट हुआ था, जस्ट अ सेक, ये सप्लाई जोन क्रिएट हुआ था 27 अक्टूबर को, राइट। और फिर उसके बाद ये कब दोबारा से रीटेस्ट हुआ ये सप्लाई जोन, 17 जनवरी को, राइट। अक्टूबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीने के बाद सेम लेवल फिर से रीटेस्ट हुआ है और निफ्टी वहां से नीचे आ गई है, राइट। तो ये डिमांड और सप्लाई जोन का कॉन्सेप्ट है। अगर आप आज की बात करते हो, राइट, पास्ट की बात छोड़ देते हैं, आज और कल की बात करते हैं, तो मैं सारी ड्राइंग्स को रिमूव कर देती है, अब इसको भी छोड़ देते हैं, हम रीटेस्ट पे जाते हैं, राइट, रीटेस्ट पे जाते हैं हम, यहाँ से कहीं पे से अपना सप्लाई जोन और रेजिस्टेंस जोन हम अपना मार्क कर लेते हैं, ठीक है। देखते हैं कि क्या होता है, हम इतना एरिया लेते हैं और इससे सप्लाई और डिमांड जोन को मार्क करते हैं। तो यहाँ देखोगे आप बार बार इस जगह पे निफ्टी ने सपोर्ट लिया है,
ठीक है, तो हम इसको मार्क कर लेते हैं एज आर सप्लाई जोन, राइट। यहाँ पे डिमांड जोन, यहाँ पे डिमांड है, लोग बाय करने को तैयार खड़े हुए हैं। उसके बाद जहां से इसने बार बार रिवर्सल लिया है इस जगह से, उसको भी हम मार्क कर लेते हैं, राइट। ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। रेजिस्टेंस मीन सप्लाई जोन हो गया। और ऑलवेज रिमेंबर कि जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट बन जाता है और जो सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस बन जाता है। उसके बाद एक रिवर्सल यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे मार्क कर लेती हूँ, राइट। उसके बाद एक यहाँ पे रिवर्सल आ रहा है, आप देखोगे ये एक बार और दो बार सेम जगह से इसने रिवर्सल लिया निफ्टी ने, सो ये भी एक सप्लाई जोन बन गया। और बहुत ही क्लोज इसने सपोर्ट लिया है, यहाँ पे देखोगे आप क्लोज सपोर्ट लिया है, तो मैं इसको भी मार्क कर लेती हूँ एज माई डिमांड जोन, राइट। यहाँ पे बार बार डिमांड आती है और निफ्टी ऊपर चली जाती है। उसके बाद फिर हम मार्क करते हैं यहाँ पे देखो आप, इस जगह पे देखो निफ्टी को रेजिस्टेंस लगा है थोड़ा सा, तो हम गोना मार्क दिस एज वेल। ये हम छोटे टाइम फ्रेम पे बात कर रहे हैं, राइट। उसके बाद ये एक हमारा इस लेवल को निफ्टी पार नहीं कर पाई है, तो ये एक हमारा सप्लाई जोन है, राइट। उसके बाद हम पास में आगे चलते हैं और यहाँ पे ये एक हमारा सप्लाई जोन है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा एक सपोर्ट जोन है। यहाँ देखो आप, बार बार निफ्टी ने इस जगह को ब्रेक नहीं किया एंड देयर इज अ गैप अप। तो गैप अप का मतलब यही होता है कि स्टांस थोड़ा सा पॉजिटिव है, यहाँ मार्क कर लेते हैं। फिर जहां से निफ्टी ने रिवर्सल लिया है, निफ्टी ने यहां से रिवर्सल लिया है, राइट। उसके बाद एक ये जगह पे देखो आप, ये लेवल लग रहा है, राइट। हम पीछे से मार्क कर रहे हैं और आगे देखेंगे जाके कि क्या होता है ये, राइट। उसके बाद निफ्टी ऊपर गई और एक ये जगह पे इसको रेजिस्टेंस लगा है, ये जगह पे 18347 पे, राइट। और एक थोड़ा सा नीचे लग रहा है ये जगह पे, ओके। सो मोरलेस हमने सारे लेवल्स मार्क कर लिए हैं। अब मैं आपको क्या दिखाना चाहती हूँ कि हमने ये मैंने कब तक मार्क किए, 20th जनवरी तक मार्क किए। आगे धीरे धीरे मूव करते हैं और देखते हैं कि ये लेवल्स को क्या, आर दे ऑनर्ड सम टाइम और नॉट। सो इसी लेवल से, इसी जो भी हमारा डिमांड या सप्लाई जोन था, एक बार रेजिस्टेंस लेके नीचे आई है, फिर क्रॉस करने की कोशिश की है। अब ये एक हमारा नया लेवल यहाँ पे बन जाएगा, बट एनीवे आगे देखते हैं। इस लेवल से रेजिस्टेंस लेके निफ्टी ने ड्रॉप किया है। कुछ लेवल्स हमने यहाँ पे मार्क कर रखे हैं, देखते हैं कि उनको ऑनर करती है कि नहीं करती है डिमांड एंड सप्लाई जोन को। सो ना यहाँ पे एक आपको देखोगे एक नया लेवल बन गया है, इस लेवल को भी मार्क कर लेते हैं और इस लेवल को भी मार्क कर लेते हैं, ठीक है, राइट। नाउ ये जो लेवल हमारा मार्क किया हुआ था, इसको इसने वॉल्यूम के साथ क्रॉस किया है, नेक्स्ट लेवल तक आया है, नेक्स्ट लेवल पे आके थोड़ा रेजिस्टेंस लगा है, राइट। एंड देन नेक्स्ट डे इट ओपन गैप डाउन, इस सपोर्ट जोन में ही खुली है निफ्टी। इसी जोन से सपोर्ट लेके ऊपर जा रही है। सी जो हमने पास्ट में मार्क कर रखे हैं लेवल्स, दे मैटर अ लॉट। यहीं पे निफ्टी इस रेजिस्टेंस के साथ क्लोज हो गई इस दिन। नेक्स्ट डे स्लाइड गैप अप मींस स्टांस इज पॉजिटिव। बट निफ्टी इस 13798 को और 13400 को क्रॉस नहीं कर पाई। नाउ हमारे पास एक नया फ्रेश लेवल बन गया ये वाला, राइट, बिकॉज ये फ्रेश लेवल है। अब नेक्स्ट डे थोड़ा गैप अप खुली है, विच इज आई थिंक आज का ही दिन है, और इसी लेवल से रेजिस्टेंस ले रही है। सी हियर, ये जो हमने कल लेवल फॉर्म हुए थे उससे रेजिस्टेंस ले रही है और थोड़ा ऊपर गई, और नेक्स्ट भी एक बहुत क्लोज बाय रेजिस्टेंस जोन अवेलेबल है।
वहां से लेके अब देखते हैं क्या होता है। अब इसको अच्छा खासा रेजिस्टेंस लगा था उस दिन। सो आई थिंक दिस डे इज 31st जनवरी, यस्टरडे, राइट। अब कल आज का दिन देखते हैं। आज का दिन लेट्स हैव अ लुक कि क्या होता है। सो आज इसने एक नया लेवल बनाया है, ये वाला, और बाउंस कहाँ से किया? इस जोन से बाउंस किया। हमने जो पास्ट से हमने जो जोन बना रखा है उसी से इसने बाउंस किया है। सो ये जो सप्लाई और डिमांड जोन है कैसे ड्रॉ करते हैं? जहां से निफ्टी रिवर्सल ले रही है, जहां से निफ्टी, बैंक निफ्टी या कोई भी स्टॉक रिवर्सल लेता है, वहां से हम ये डिमांड एंड सप्लाई जोन को ड्रॉ करते हैं, और फिर ये हम पास से ड्रॉ करते हैं और फिर प्रेजेंट में देखते हैं कि क्या हो रहा है, राइट। होप यू हैव अंडरस्टूड लिटिल बिट अबाउट निफ्टी सपोर्ट एंड द रेजिस्टेंस जोन। तो अभी ये जो है एक क्रूशियल लेवल पे खड़ी हुई निफ्टी 17,600 पे, राइट। सो निफ्टी के हम ऑप्शन चेन को भी देख लेते हैं कि हो क्या रहा है निफ्टी में 17,600 पे। अगर आप देखोगे कि आज की डेट में क्या हुआ है निफ्टी में, करीब 23,400 contracts have been written on the call side in Nifty, in Nifty, right? And similarly, almost similar number of contracts have been written on the put side, right? Put is looking very strong. See here, there is 24,000, 48,000, 23,000, right? So put writing has been stronger, whereas the call writing is not so strong. Of course, there's far away some kind of here at this level 18,000 you can see the huge numbers. But if you have a look at on the call put side, you will see there is a huge put writing has happened in this space, right? So that means, but ये सारा dynamic market में, right? अब कल क्या होगा we don't know. आज की डेट में क्या लगा था कि मार्केट बैंक निफ्टी लुक स्ट्रॉन्ग, राइट, बाय लुकिंग एट द ऑप्शन राइटिंग। एंड नाउ क्विकली आई हैव 3 or 4 stocks for tomorrow, so I'm going to show you all 3 or 4 quickly before I close. So the first stock that I have on my radar, एंड अगर आप निफ्टी को भी देखते हैं तो इसने एक ब्यूटीफुली एक सपोर्ट लिया है फ्रॉम द लोअर लेवल्स, राइट। सो जो फर्स्ट स्टॉक मेरे रडार पे है कल के लिए उसका नाम है FSL, right? First Source Solution. This is my first stock, right? And it looks good to me for a reversal. Trend line has been broken. There's been a gap up opening with open equal to low, and today again there was a gap up opening. The crucial thing is that it has to cross 162, 163 इसको cross करना है. Then you will be able to find a good move till about 170, right? 170, 173 तक आपको इसका मूव मिलेगा. एक और स्टॉक जो मैंने कल भी डिस्कस किया था is PVR, right? PVR is looking good. Definitely it's looking good. The kind of, as I told you, the option chain is building up, the way it is building up, and look at the price. Price shows the rejection from the lower level. सो अगेन 1610 के ऊपर ही आपको इसमें बाय करना है. एक लॉन्ग टर्म स्टॉक जो मुझे अपने रडार पे दिख रहा है वो है बायोकॉन, राइट. बायोकॉन में क्या हो रहा है अगर आप देखोगे, प्राइस हैज बीन स्ट्रगलिंग अ लॉट. देयर इज अ ह्यूज कंजेशन हैपनिंग इन दिस लेवल, राइट. तो what we can really ensure कि प्राइस अगर कल 377 के ऊपर खुलता है तो ये एक 388 तक का टारगेट को हिट करने जरूर जाएगा, और अगर 388 क्रॉस हो जाता है देन आई एम एक्सपेक्टिंग फॉर अ 393, एंड 393 के बाद हम इसमें एक टारगेट ऑफ 400 एक्सपेक्ट कर सकते हैं. तो हमने 3 स्टॉक्स की बात की, FSL, PVR, बायोकॉन, और एक लास्ट स्टॉक जो मेरे रडार पे है एज ऑफ नाउ इज नौकरी, right? Naukri, Info Edge. It looks really good. Again, this and FSL have the same kind of setup, right? Exact same setup. So see here, this is the trend line, right, which was broken yesterday beautifully. और आज भी नौकरी जो है स्लाइट गैप अप ओपनिंग के साथ हुई, बट द कैंडल दैट इज फॉर्म टुडे is little indecisive candle. So hoping for a good trade tomorrow. Let's see what happens. So hope you have understood what is support and the demand zone. Agar clear nahi tha, I will again try, but everybody should please write in the comment box that you have understood little bit about support and the demand and the supply zone. Demand means jahan buyers बैठे हुए हैं, और supply means jahan पे sellers बैठे हुए हैं.
राइट। और वो कहाँ से हम पता लगाते हैं, जहां से हमको रिवर्सल मिलता है निफ्टी का या बैंक निफ्टी का। सो गाइज अगेन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू दैट ASAP and help us grow this channel so that a lot of people can be protected falling into trap of people who are just doing financial entertainment on the YouTube. So with this, I'm signing off. I'm your host, Dr. Seema Jain. I'm a SEBI registered research analyst. You can get my credentials on my Twitter handle. All the best, guys, and remain connected. Please be present on my Telegram channel where I'm super active and I'm giving you live trades. And see here, in the morning, the kind of trades we have given and the kind of movement they have given is unbelievable. So I've given Naveen Fluorine for a buy and it gave a move of about 300 plus points ka, right? Sun Pharma I have given for a buy at 850. It made a high of Sun Pharma made a high of I'll just show you Sun Pharma. Where is Sun Pharma? Here is Sun Pharma. It made a high of 895, right? 850 to 895. इतने छोटे से stock में आप देखो huge kind of movement, right? So this is what our research is, right? IndiaMart PEL we have given, it gave a good move. Canfin हमने दिया है. Canfin will give a move tomorrow if it hasn't given a move today. So remain connected to get excellent trades in the morning and see you all. Please note down Stock Pro official SEBI registered and there are about 2,87,000 subscribers. Join me here to get one of the best trades early morning. Take care. Bye bye. See you.